Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Codicip. So today we will going to solve the lead code problem number largest lead code problem number 1895 largest magic square. Okay, let's read the problem statement. A k cross k magic square is a k cross k grid filled with integers such that every row sum, every column sum, and both diagonal sums are equal. Okay, the integers in the magic square do not have to be distinct. Every 1 cross 1 grid is trivially a magic square. Okay, so we have to find that magic square uh, which have every row sum, every col sum, and diagonal sums must equal, and grid magic grid can have duplicate elements. Okay, so we have to return the size of the largest magic square such that can be found within the grid. Okay, so we have to find that square which have largest size. Okay, means we have to return the size such that the largest square formed. Okay, largest area of the square form. Okay, so let's look at this example test case of the lead code problem number lead code pure lead code example number 1. Okay, so this is given as a grid. So we have to find the k cross k grid which is filled with the integers, and row sum and col sum and diagonal sum must be equal. Okay, so if we found the row sum diagonal sum, look at here, 5 plus 5 and 2 is 12. ठीक है, 5 plus 1 plus 6 is 12. Okay, 5 plus 4 plus 3 is 12. Okay, 6 plus 4 plus 2 is also 12. So we check that all the conditions are met. So we have to find that square of length 3. Okay, and if we found another square of greater than 3 size, we can't found because there is no such squares happen. Okay, look here, if we look in this square like 4 cross 4, the sum of a column and diagonal are column, row and diagonal not equal. Okay, so we didn't choose it. Okay, हम अब इसको नहीं चूज़ कर सकते हैं. ओके, सो द लार्जेस्ट एरिया विच इज़ फॉर्म्ड ऑफ 9 एंड द साइज इज़ 3. ओके, सो वी हैव टू रिटर्न दैट. ओके, सो अब हम इसकी अप्रोच पर मूव करते हैं. इसकी अप्रोच क्या होती है? सो इसकी अप्रोच में क्या कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट को फिक्स करिए. ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड कर रहे हैं वो मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी है उस स्क्वायर की. तो स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले तो वो स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि हमें तो भाई कि n क्रॉस m दिया गया है मैट्रिक्स. ठीक है, तो वो रेक्टेंगल भी हो सकता है. तो हमें स्क्वायर बनाने के लिए पहले उस रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना पड़ेगा. तो स्क्वायर कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल सवाल है. स्क्वायर बनाने के लिए अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल गिवन है लाइक दिस, ठीक है, इसकी ये हमारी भुजा जो है वो 4 है और ये जो है साइड वो हमारी 3 है. ओके, 3 है, सॉरी 3 नहीं हो सकती है, इट कैन नॉट बी 3, इट कैन बी 4 5. ओके, सो इफ वी कंपेयर फ्रॉम 4 and 5, if we want to make the length of 4, okay, square of 4, so we can make by removing this part. If we remove this part, so we can make the square of size 4. But if we want to make the size of 5 square, we can't make it because there is no extra addition of the like slice. Okay, we can't add any slice, but we can remove the slice, so such that the square can make. So to make the square from the rectangle, we have to take the minimum length of the rectangle. So in this grid, the maximum length is here. The minimum length can be minimum of n and m. Okay, here n is 4 and the m is 5 Okay, so the minimum length can be 4. Okay, so here the minimum length can be 4. Okay, so now we have to हमको क्या देखना पड़ेगा, we have to find the square. Okay, so but by making this, the maximum square can be possible
by maximum square can be possible by taking the minimum of n and m. We can make the possible lengths, maximum possible length can be formed by taking the minimum of n and m. Okay, so which is 4. Okay, so this is the maximum square can be formed. Okay, now we have to find the that square, but हमको तो वो स्क्वायर फाइंड करना है ना जो स्क्वायर जो कंडीशन हमारी मैट करे जो हमारी क्वेश्चन में गिवन है. ओके, सो इफ वी टू चूज दैट, इफ वी फिक्स दैट इंडेक्स सेल 0,0 को अगर हम फिक्स कर लें तो हमें एक स्क्वायर ये मिल जाएगा. ठीक है, दूसरा स्क्वायर मुझे ये मिल जाएगा. ओके, आप देख सकते हैं मैं कौन सा स्क्वायर बता रही हूँ. ठीक है, तीसरा स्क्वायर मुझे ये मिल जाएगा. और मुझे ये कहाँ तक की जाना है, मुझे ये लेंथ 4 तक की जाना है. अभी मैं फर्स्ट लेंथ पे थी. ठीक है, अभी मैं 1 लेंथ पे थी, स्क्वायर की 1 लेंथ पे थी. अब मैं 2 लेंथ पे आ गई. ठीक है, अब मैं 2 लेंथ पे आ गई. फिर उसके बाद मैं किस पे आ जाऊँगी, फिर उसके बाद मैं 3 पे आ सकती हूँ. ये मेरा 3 लेंथ का हो गया. ठीक है, मैक्सिमम जो स्क्वायर है वो 4 तक की बन सकता है. अभी मैं 3 पे हूँ. ठीक है, तो मैं इसके आगे और भी जा सकती हूँ. इसके आगे मैं क्या जा सकती हूँ, इसके आगे मैं 4 पे जा सकती हूँ. ठीक है, बस इसके आगे मैं नहीं जा सकती हूँ. ठीक है, तो ये मैक्सिमम स्क्वायर मुझे मिल गया. अब इन सारे स्क्वायर को मुझे चेक करना पड़ेगा बारी बारी कि या ये कंडीशन मैट कर रही है कि नहीं कर रही है. तो 1 का चेक करने से कोई फ़ायदा है नहीं. क्यों, क्योंकि भाई 1 तो हमेशा ही एक मैजिक स्क्वायर ग्रिड रहेगा ही है. तो 2 का चेक कर लेते हैं. जैसे ये मेरा 2 साइज़ का है एक स्क्वायर, इसको चेक करते हैं. 7 + 1 6, 7 + 2 9. ओके, तो सॉरी 7 + 1 8 एंड 7 + 2 9. तो ये नहीं हमारा वैलिड है. तो ये स्क्वायर मेरा वैलिड मैजिक स्क्वायर ग्रिड नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे. ठीक है, तो चलते हैं 3 पर. 3 का चेक करते हैं 3 × 3 के लिए. 7 + 1 हमारा 8 है एंड 8 + 4 = 12. ओके, 7 + 2 = 9, 9 + 1 = 10. ये भी हमारा वैलिड स्क्वायर ग्रिड नहीं, इसको भी नहीं लेंगे. तो मेरा बेसिक कहने का मीन्स ये है, मतलब ये है, हम एक सेल को फिक्स करेंगे और उससे होने वाले जितने भी हमारे स्क्वायर बन रहे हैं उन सबको चेक करेंगे बारी बारी. यानी सारी पॉसिबिलिटी, वी हैव टू चेक द ऑल पॉसिबिलिटीज़. ओके, तो अगर हम 0 0 को फिक्स करेंगे तो हमारी लेंथ, मैक्सिमम लेंथ जो बन रही है वो 4 बन रही है. इफ़ वी फिक्स द 0,0 तो हमारी मैक्सिमम लेंथ कितनी बन रही है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्क्वायर कैन बी पॉसिबल 4. बट इफ़ वी फिक्स द लेंथ, अगर हम इस वाली लेंथ को फिक्स करें, कौन सी लेंथ को, ये सॉरी लेंथ कह रही, इस वाली सेल को फिक्स करें, कौन सी 1,0 को, तो हमारी 3 लेंथ की बनेगी. देखिए क्यों 3 लेंथ की बनेगा स्क्वायर, मैक्सिमम स्क्वायर जो बन सकता है वो 3 लेंथ का बन सकता है. क्यों भाई, ये जो हमें मिनिमम लेना होता है ना, इसका 3 है और इसका यहाँ पे 5 है, बट हम तो मिनिमम लेंगे. मिनिमम हमारा 3 है तो हमारा 3 स्क्वायर बन सकता है, 3 × 3 का स्क्वायर बन सकता है मैक्सिमम स्क्वायर. ठीक है, और सेम हम यहाँ पर अगर मैं 1,1 को फिक्स करूँ, इस सेल को मैं फिक्स करूँ, इस वाली सेल को 1,1 को, तो मेरा मैक्सिमम स्क्वायर भी मेरा 3 × 3 का ही बनेगा. क्यों 3 × 3 का, इसको देखिए ये मेरा हुआ, ये जो लेंथ वो मेरी 3 है मिनिमम लेंथ. मुझे मिनिमम लेंथ लेनी पड़ेगी, तो ये हमारी कितनी होगी 4, ये हमारी 3 होगी, तो मिनिमम हमारा क्या हो जाएगा 3. ठीक है, तो हमारा 3 × 3 का मैक्सिमम स्क्वायर कैन बी पॉसिबल ऑफ 3 × 3. ठीक है, तो अगर मैं इस वाले 1 × 1 को मैं 1 ऑफ सेल को मैं इसको फिक्स करती हूँ, इससे जितने भी मेरे स्क्वायर बन सकते हैं उन सारे स्क्वायर को मैं पॉसिबिलिटी फाइंड करती हूँ. ठीक है, अगर मैं 3 × 3 का ही चेक करूँ एक बारी, 3 × 3 का ही मैं एक बार चेक करके देखूँ. अगर मैं 3 × 3 का बना, एक मिनट. ठीक है, अगर मैं 3 × 3 का ही एक बार चेक करके देखती हूँ. ठीक है, 3 × 3. ओके, अगर मैं 3 × 3 का चेक करूँ तो 5 + 1 = 6, 6 + 6 = 12. ओके, एंड 5 + 5 = 10 एंड 10 + 2 = 12. ओके, ये तो रो सम कॉल सम इक्वल हो गया. ठीक है, डायगोनल सम देखते हैं. 5 + 4 = 9, 9 + 3 = 12. ओके, इधर देखते हैं 6 + 4 = 10 एंड 10 + 2 = 12. ओके, तो हमारा ये 12 दे रहा है, मतलब सारे जो रो सम कॉल सम डायगोनल सम, दोनों डायगोनल सम सारे इक्वल हो रहे हैं. तो हाँ, ये मेरा बन सकता है. तो हमारा 3 × 3 का मुझे एक मिल गया है स्क्वायर. ओके, 3 × 3 का. ठीक है, तो अब मुझे मेन चीज़ क्या करनी है, मुझे एक दो फॉर लूप चाहिए होंगे. क्यों, मुझे एक फॉर लूप आई के लिए चाहिए होगा, एक फॉर लूप जे के लिए चाहिए होगा. ठीक है, एक बारी मैं इसको फिक्स करके एक फंक्शन बनाऊंगी मैजिक स्क्वायर करके, उसमें चेक करूंगी, उसमें मैं भेज दूंगी यहाँ से. अगर मैं 0,0 से स्टार्ट करूँ अपना ग्रिड, ठीक है, अगर मैं 1,1 से स्टार्ट करूँ अपना ग्रिड, तो सारे मुझे पॉइंट, सारे सेल पॉइंट्स मुझे भेजने पड़ेंगे. ठीक है, एक फंक्शन बनाने के फंक्शन में. ठीक है, चेक करने के लिए कि ये क्या मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है. ठीक है, चेक करने के लिए. ओके, तो वी हैव टू चेक सेंड द स्टार्ट ऑफ आई एंड स्टार्ट ऑफ जे. ठीक है, तो अगर मैं 1 और 1 को फिक्स कर लेती हूँ, मैं एक ड्राई रन करके दिखाती हूँ. अगर मैं 1 और 1 को फिक्स कर लेती हूँ,
ठीक है। तो मेरी लेंथ कितनी बनेगी, तो मैं लेंथ मेरी मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम स्क्वायर मैक्सिमम रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी उनका मिनिमम लेना है। देखिए तो ये मेरा 4 है, सॉरी ये मेरा 3 है एंड ये मेरा 4 है, तो इसकी जो मिनिमम क्या होगी 3 होगी। तो मेरी लेंथ जो मैक्सिमम लेंथ कैन बी पॉसिबल विच इज़ 3, समझ रहे हैं ना। मैक्सिमम लेंथ जो मेरी बनेगी वो विच इज़ 3, विच इज़ ऑफ 3, ठीक है। तो मेरा स्टार्ट ऑफ आई 1 हो गया एंड स्टार्ट ऑफ जे 1 हो गया। अब मुझे रो सम निकालने, कॉल सम निकालने, डायगोनल सम निकालने। तो रो सम के लिए सिंपली मुझे फॉर लूप 2 फॉर लूप चलाने पड़ेंगे रो सम निकालने के लिए, ठीक है। एक फॉर लूप के लिए मैं क्या करूँगी, मुझे आई रो सम निकालना मतलब ये वाला इस ऐसे जाना, मुझे ऐसे मूव करना है, मुझे रो को फिक्स करना है, जे को मुझे जो को मुझे मूव करना है। तो 2 लूप चलेंगे, ठीक है, 2 लूप इसके लिए भी, ठीक है। सेम हमारे और कॉल सम के लिए भी 2 लूप चलेंगे। इस बारी मुझे किसको फिक्स करना पड़ेगा, इस बारी मुझे रो को आइटरेट करवाना है और कॉल को फिक्स करना है, ठीक है। रो को आइटरेट करवाना है और कॉलम को फिक्स करना है, ठीक है। रो को आइटरेट करना है, कॉलम पे फिक्स करना है, ठीक है। डायगोनल सम निकालेंगे, डायगोनल सम में थोड़ा सा हमें बुद्धि लगानी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर मेरा स्टार्ट ऑफ आई 1 है, स्टार्ट ऑफ जे 1 है, तो लेंथ मेरी मैंने 3 निकाल ली थी, ठीक है। इसको मैंने डबल क्यों लिख रखा है, इसको डबल वाला टॉप आई, तो मैंने लेंथ इसकी कितनी निकाली थी 3, ठीक है। लेंथ मैंने इसकी 3 निकाली थी। अब मेन काम ये है कि डायगोनल सम की मुझे इंडेक्स कैसे मिलेगी भाई, डायगोनल सम की हाउ टू फाइंड द डायगोनल सम इंडेक्स, ठीक है। तो मेरा डायगोनल सम क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे एक बार लिख के दिखाती हूँ। डायगोनल सम मेरे डायगोनल्स मेरे एलिमेंट कौन से थे, 5 4 और क्या था मेरा 5 4 3। तो ये तो मेरा टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक की मेरा डायगोनल है, ठीक, मतलब डायगोनल है, ठीक है। और एक मेरा डायगोनल है टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट, ठीक है। ये मेरा कुछ बन रहा है ग्रिड, इसको भी भर ही लेते हैं जब बना ही रहे हैं, ठीक है। 5 1 7 एंड 3, ओके। एंड मैं यहाँ पर इंडेक्स कर देती हूँ इसकी, मैं 1 2 3, इसका भी 1 2 3, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं, ओके। तो मेरा ये बन गया है। तो मुझे अब डायगोनल निकालना है। एक मेरा मैं मार्क कर देती हूँ कौन सा डायगोनल है मेरा, ये वाला डायगोनल, कुछ ये वाला, ठीक है। 5 मुझे लेना है, ठीक है। 5 इंडेक्स निकालिए, सॉरी 5 की इंडेक्स सेल निकालिए 4 एंड 3। तो इसके लिए मुझे कैसे मैं आई और जेथ निकालूंगी, तभी तो मैं सेल को निकाल पाऊंगी। तो मुझे आई और जे निकालना है, ठीक है। आई मेरा क्या होगा और जे मेरा क्या होगा, मतलब ओवरऑल वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स, ओके। सेल के कोऑर्डिनेट्स, ओके, सेल के कोऑर्डिनेट्स। तो सेल के मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेल के कोऑर्डिनेट, ठीक है, सेल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो मैं देखिए एक बार गौर कीजिए, 1 1, ठीक है, 2 2, ठीक है, 3 3, ये तो नॉर्मल ये वाला डायगोनल होगा, 1 1 2 2 3 3। तो उसके लिए मैं कैसे निकालूंगी, मैं क्या करूँगी, जैसे नॉर्मल आप एक फॉर लूप चलाते हैं डायगोनल सम निकालने के लिए, क्या करते हैं, आई इक्वल्स टू 0 से लेके, मैं एक मिनट लिख के दिखाती हूँ सही से। आप जब नॉर्मल फॉर लूप चलाते हैं किसी भी ग्रिड पे इसके डायगोनल सम निकालने के लिए, तो क्या करते हैं, नॉर्मली एक फॉर लूप चलाते हैं फ्रॉम आई इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेस देन लेंथ तक की, ठीक है, एंड आई प्लस तक की। ये नॉर्मल आप करते हैं ना, जैसे नॉर्मल लूप चलाते हैं किसी भी ग्रिड पे उसके डायगोनल सम निकालने के लिए, तो क्या करते हैं, एक पहले तो नॉर्मल फॉर लूप चलाते हैं, ठीक है, नॉर्मल फॉर लूप चलाते हैं एंड उसमें फिर हमें जैसे मान लेते हैं ग्रिड का मुझे सेल निकालना है, ठीक है। तो मुझे 2 इंडेक्स चाहिए होती है, एक आई और एक जे, ठीक है। तो अब आई वाला इंडेक्स निकालने के लिए मैं आई कर देती हूँ और जे वाला भी मेरा आई हो जाता है। क्यों, ये दोनों इक्वल होते हैं ना, आई, ठीक है, ये 2 2 3 3 सारे इक्वल होते हैं, इसीलिए मैं कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, लेकिन यहाँ पर आई नहीं है भाई, यहाँ पर जो मेरे इंडेक्स चेंज हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया है 1 1 से, मैंने मतलब हर बारी इंडेक्स मेरी चेंज होगी, जो भी होंगी ना, क्योंकि इस बारी ग्रिड मेरा ये था, सब ग्रिड बन रहा है ना यहाँ पर, तो इस बारी मेरे 0 से नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है, इस बारी। बट हम 0 को रेफरेंस मानकर हम उसमें अगर 0 को रेफरेंस मानकर अगर उसमें स्टार्ट ऑफ आई ऐड कर दें, अगर हम किसी तरीके से 0 को रेफरेंस मानकर स्टार्ट ऑफ आई ऐड करते हैं, ठीक है, अगर 0 + 1 करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगी, ठीक है। और सेम अगर हम 0 + 1 होगा, ठीक, अब आई मेरा आगे बढ़ा, आई मेरा 1 हुआ, अगर हम 1 + 1 करेंगे तो मुझे ये 2 मिल जाएगा, ठीक है। सेम अगर मैं आई अगर मेरा 3 हो गया और 1 + 3 करूँगी, मतलब स्टार्ट ऑफ आई + 3 करूँगी, तो मुझे ये मिल जाएगा, ये वाली रो मिल जाएगी। तो मेरी रो कैसे मिल सकती है, रो वी कैन फाइंड द रो बाई
एडिंग स्टार्ट ऑफ आई प्लस आई, ओके। बट और सेम फॉर कॉल के लिए स्टार्ट ऑफ जे प्लस आई। मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिंपली अगर मुझे इस वाले कॉलम पे पहुँचना है, मैंने रेफरेंस आई इक्वल टू 0 ले रखा है, तो मैं स्टार्ट ऑफ जे को प्लस कर देती हूँ जे में, तो मुझे ये वाला कॉलम मिल जाएगा। सेम अगर स्टार्ट ऑफ जे को ऐड कर देती हूँ 1 में, तो मुझे ये वाला कॉलम में 1 + 1 2 मिल जाएगा। सेम अगर मेरा यहाँ पे आई इक्वल टू 3 है, आई इक्वल टू 2 है, तो 2 + 1 कर दूँगी तो मुझे ये वाला कॉलम मिल जाएगा, ठीक है। तो बस मुझे यही करना है। तो ये तो मेरा ये टॉप लेफ्ट एंड बॉटम राइट वाला डायगोनल हो गया, ठीक है। बट इफ वी हैव टू फाइंड द डायगोनल फॉर दिस, अगर मुझे ये वाला डायगोनल निकालना है, कौन सा मुझे निकालना है, टॉप राइट से लेके बॉटम लेफ्ट वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल। तो इस डायगोनल के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, ठीक है, इस डायगोनल के इंडेक्स क्या होंगे, ठीक है, तो वो भी निकालना है। तो मैं यहाँ पर पहले इस वाले डायगोनल लिख लेती हूँ, स्टार्ट ऑफ आई, ये लिख देते हैं पहले, जो मैंने यहाँ पर बनाए थे ना, एक मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल लिख रखा है, तो इसको मैं एक बार लिख देती हूँ, ठीक है। ये मेरे ये वाले कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये मेरे हो गए कहाँ से कहाँ तक की, मैं लिख देती हूँ एक बार, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं, एक मिनट, ठीक है। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए हैं, ये मेरे हो गए हैं, ये मेरे हैं, एक मिनट, टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, बॉटम RIGST डायगोनल, ओके। सेम अब मुझे निकालना है किसके लिए, सेम अब मुझे निकालना है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको नीचे ही लिख देते हैं, ठीक है। ये मैंने डायगोनल के कोऑर्डिनेट ही लिख रखे हैं नीचे, ठीक है, एक मिनट, ओके। अब मुझे निकालना है कौन से डायगोनल के लिए, दूसरे डायगोनल के लिए। तो सेम दूसरा वाला डायगोनल जो होगा मेरा, वो कौन सा होगा, वो मेरा होगा टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट, ओके, बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट, ओके। एक मिनट, इसको सही से लिख लेते हैं, हाँ, टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ, यहाँ से आते हैं। तो इसका देखिए, जो मेरा रो होगा वो तो सेम ही होगा, क्यों, मुझे रो तो वही मेरी एडिट करनी है, मुझे रो पे तो वही सेम जैसे इस वाले पे एडिट करें, तो वैसे रो मुझे इस वाले पे भी चाहिए, तो रो का तो नंबर वही हो जाएगा, मेरा रो का जो इंडेक्स होगी वो स्टार्ट ऑफ आई प्लस आई ही रहेगी। बट यहाँ पर चेंज होगा कॉलम के लिए, क्यों, कॉलम हमारा बदल रहा है। इस बारी कॉलम मेरा 6 है, इस बारी मैं राइट टू लेफ्ट आ रही हूँ, इस बार मैं राइट टू लेफ्ट आ रही हूँ, तो इस बारी मेरा कॉलम चेंज होगा। इस बारी कॉलम मेरा क्या चेंज होगा, इसमें मुझे जैसे 6 लाना है, ये वाली इंडेक्स मुझे प्राप्त करनी है, कौन सी, 3 वाली इंडेक्स मुझे प्राप्त करनी है। तो 3 वाली इंडेक्स मैं कैसे प्राप्त करूँगी, सेम आई अभी मेरा 0 है, आई का रेफरेंस मेरा क्या है, आई है, जैसे एक मिनट, अभी आई मेरा जो करंट आई मेरा है वो 0 है, ठीक है, और स्टार्ट ऑफ जे मेरा 1 है, ठीक है। तो 1 प्लस अगर मैं इसमें लेंथ ऐड करती हूँ, जो मेरी करंट ग्रिड का लेंथ है उसको मैं ऐड करती हूँ लेंथ, ठीक है, और माइनस का आई करती हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस लेंथ मेरी क्या है 3, माइनस का आई मेरा क्या है 0, तो ये मुझे 4 दे देगा, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए है भाई, मुझे यहाँ पर 3 चाहिए, तो माइनस का 1 कर देते हैं, तो मुझे ये 3 मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर माइनस का 1 कर देता तो मुझे 3 मिल जाएगा। तो सेम अगर मैं सेकंड वाले रो पे आऊँ तो आई इक्वल्स टू मेरा क्या जाएगा, आई इक्वल्स टू मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड रो पे आई 1 हो गया, ठीक है, आई 1 हो गया, और लेंथ मेरी क्या है, लेंथ मेरी 3 है, ठीक है, आई 1 है, लेंथ 3 है। तो अब मेरा क्या होगा, ये मेरा स्टार्ट ऑफ जे है, ठीक है, ये मेरा स्टार्ट ऑफ जे है, ठीक है, और लेंथ 1 प्लस ये तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, 3 + 1 = 4, बट चेंज मेरा क्या हुआ, आई चेंज हुआ, तो 4 - 1 मेरा 3 हो जाएगा, एंड 3 - 1 मेरा 2 हो जाएगा। तो मैं इस वाले कॉलम पे पहुंच जाऊंगी, कौन से, इस वाले कॉलम पे पहुंचूंगी। तो यही मुझे एडिट करना है। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आएगा, स्टार्ट ऑफ जे
स्टार्ट ऑफ जे प्लस लेंथ -1 सॉरी -i एंड -1, ये मेरा चेंज आएगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने ये जो सेल्स हैं ये कैसे निकाले हैं, सेल के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले हैं। ठीक है, ओके। तो मेरे डायगोनल्स के भी कोऑर्डिनेट्स मैंने बता दिए कैसे निकाले हैं। तो बस मैंने मेन यहाँ पे डायगोनल के कोऑर्डिनेट निकालने थे। रो सम तो कॉलम सम तो आपको निकाले लेंगे, तो क्योंकि 2 फॉर लूप लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है दोनों डायगोनल सम के लिए, ये फर्स्ट वाले के लिए और सेकेंड वाले के लिए। ओके, एक बारी मैं रो सम निकालने का फॉर लूप लिख के दिखा देती हूँ कैसे लिखना है। वैसे मैं कोड तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है, बट मैं यहाँ पर भी एक बार लिख के दिखा देती हूँ कि कैसे लिखना है आपको। ठीक है, जैसे फॉर लूप मैंने चलाना है, फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू स्टार्ट ऑफ आई से चलाना है। ठीक है, एंड जो मेरा आई होगा वो लेस देन स्टार्ट ऑफ आई प्लस लैन। ओके, प्लस लैन एंड आई प्लस प्लस, ये मेरा फॉर लूप हो गया कौन सा, रो सम निकालने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा पहले करंट आई के लिए, ठीक है, ये आई के लिए मेरा हो गया। ठीक है, मैंने क्या लिखा है एक बार मैं बताती हूँ इसको। मैंने क्या लिखा है, मैंने स्टार्ट ऑफ आई तो से स्टार्ट किया, जैसे मैंने फिक्स कर लिए थे 2 पॉइंट्स, ये मैंने 1,1 फिक्स किया था। ठीक है, तो मैंने 1,1 ये आई, ये वाला आई और ये वाला जे मैंने भेज दिए। ठीक है, मैजिक ग्रिड के फंक्शन में। ठीक है, और फिर यहाँ से मैंने लेंथ मैंने देख ली कितनी लेंथ मैक्सिमम रह सकती है, 3, तो 3 मैक्सिमम लेंथ हो सकती है। ठीक है, तो मैं अभी फर्स्ट लेंथ से स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट लेंथ से स्टार्ट करने के बजाय मैं 2 लेंथ से स्टार्ट करती हूँ, 2 लेंथ से। ठीक है, तो 2 लेंथ मैंने मान लिया, स्टार्ट ऑफ आई मैंने ये, तो मेरा आई प्लस स्टार्ट ऑफ आई से होगा ना, और जे सेम जे प्लस स्टार्ट ऑफ जे से होगा। और मुझे अभी मैंने 2 लेंथ के लिए निकाल लिए, फिर मैंने 3 लेंथ के निकाल लिए। तो ऐसे ही मुझे एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा 3 लेंथ के लिए, मैक्सिमम लेंथ के लिए, और मैक्सिमम लेंथ के लिए मतलब लेंथ इज इक्वल्स टू 2 से मुझे कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम लेंथ तक की जाना है। मैक्सिमम लेंथ के सारे ग्रिड निकालने, तो मैं सपोज मैं अभी करंट लेंथ मेरी यहाँ पर 2 है। ठीक है, 2 लेंथ के लिए मैं स्क्वायर ग्रिड चेक कर रही हूँ। ठीक है, वो ग्रिड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तो मैं यहाँ पर थी, तो अब मैं जो दूसरा लूप चलाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर एक सम नाम का भी मुझे वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, किस नाम का मुझे लेना पड़ेगा वेरिएबल, सम नाम का। और मुझे यहाँ पर अभी फॉर लूप एक बार और ही चलाना पड़ेगा, इंट जे इक्वल्स टू स्टार्ट ऑफ जे से लेके जे लेस देन स्टार्ट ऑफ जे प्लस लेंथ। ठीक है, ये मेरा कौन सा, मैं रो बाय सम निकाल रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मुझे सम प्लस इक्वल्स टू ग्रिड ऑफ आई एंड जे, तो ये मुझे रो बाय सम दे देगा। ठीक है, और मुझे बाद में चेक भी करना पड़ेगा अगर इफ़ जो सम है वो नॉट इक्वल्स टू टारगेट सम नहीं हुआ। ठीक है, अभी टारगेट सम क्या है, मैं एक बार क्या करूँगी, यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं हुआ है तो यहाँ पर मैं क्या करना बोल रही हूँ, टारगेट सम मैं एक क्या करूँगी, मैं एक फर्स्ट रो के लिए चला के देख लूँगी, जो एक फर्स्ट रो का मेरा सम होगा उसी को मैं टारगेट सम बना लूँगी। ठीक है, और मुझे सारे सम इसी के इक्वल करने हैं, इसी के इक्वल एक टारगेट सम बना लेंगे, या फिर एक डायगोनल सम जो मैंने निकाले हैं ना उसी का इक्वल सारे सम हो गए, क्योंकि सम तो सारे इक्वल है ना। या फिर ये डायगोनल सम हो, ये वाला डायगोनल सम ले लो, या फिर ये वाला रो सम ले लो, तो सारे सम मेरे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, किसी को भी टारगेट सम बना लूँगी, या फिर इस डायगोनल को बना लूँ, या फिर किसी भी एक रो का बना लूँ टारगेट सम, तो बस किसी का भी टारगेट सम बना के मैं इक्वल कर दूँगी और चेक करते जाएंगे। तो ये मैंने एक रो सम निकालने के लिए फॉर लूप बताया आपको, तो सेम फॉर्मूला डायगोनल कॉलम सम के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कोड पे चलते हैं और कोड में मैं दिखाती हूँ कि कैसे कोडिंग करनी है। मैंने पहले से ही कोड लिख रखा है, मैं बस आपको समझा दी हूँ। ठीक है, और रन करके दिखाऊंगी कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा कोड है जो मैंने पहले से ही लिख रखा है। तो सेम पहले मेन फंक्शन में जाएंगे, और मेन फंक्शन में क्या लिखेंगे, पहले तो लेंथ डिफाइन कर लेंगे जो हमारी करंट ग्रिड की है, और मैक्सिमम लेंथ 1 तो हो ही सकती है। ठीक है, उसने ऑलरेडी बोल रखा कि एक जो 1x1 का ग्रिड होगा वो ऑब्वियसली एक हमारा मैजिक ग्रिड स्क्वायर होगा। ठीक है, और हम मैजिक ग्रिड का एक फंक्शन बनाएंगे जैसा कि मैंने बताया था, उसमें ग्रिड पास करेंगे और आई कमा जे, जैसे अभी मैंने आई कमा जे को फिक्स कर लिया है। ठीक है, और जो करंट जो हमारी एन और एम है उसको मैं पास कर दूँगी, और मैक्सिमम लेंथ को अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, तो इस मैजिक ग्रिड में क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे मैक्सिमम लेंथ निकालनी है करंट ग्रिड की, करंट ग्रिड का जो स्क्वायर
कितने मैक्सिमम लेंथ का पॉसिबल हो सकता है करंट ग्रिड में। जो मैंने सब ग्रिड मैंने भेजी है, लाइक अगर मैंने सब ग्रिड भेजी है इस वाले, ये वाली, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे मैंने अगर सब ग्रिड इस वाली भेजी है, तो इस वाले में जो मैक्सिमम मेरी लेंथ का स्क्वायर कौन सा पॉसिबल हो सकता है, दैट इज n माइनस स्टार्ट ऑफ आई एंड m माइनस स्टार्ट ऑफ आई का मिनिमम, ठीक है। और मैंने बेस्ट लेंथ मेरी वैसे स्टार्टिंग में 1 है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया तो मैक्सिमम लेंथ तक ही मुझे जाना है, ठीक है। तो अगर मैंने लेंथ 2 से स्टार्ट करी, मैक्सिमम लेंथ के सारे मुझे सब ग्रिड को चेक करना है। तो मैंने डायगोनल सम ले लिया स्टार्टिंग में, डायगोनल सम मैंने निकाल लिया। डायगोनल सम का मैंने बता दिया था कि स्टार्ट ऑफ आई, स्टार्ट ऑफ जे प्लस आई, स्टार्ट ऑफ आई, स्टार्ट ऑफ जे प्लस लेंथ माइनस 1 माइनस आई माइनस 1, ठीक है। और सेम D1 अगर नहीं करें तो कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि अगर इस लेंथ में अगर कहीं भी गलती हो गई तो मैं कंटिन्यू कर दूँगी, ठीक है। मैंने टारगेट सम मैंने मान लिया एक कोई, ठीक है। और इस मैजिक को मैंने 2 मार दिया अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मैंने टारगेट निकाल लिया, फर्स्ट रो का सम निकाल लिया, जैसे टारगेट मान लिया। अगर वो D1 जो टारगेट सम के इक्वल नहीं है तो कंटिन्यू कर जाएंगे, ठीक है। और अगर D1 2 के ही नहीं इक्वल तब भी कंटिन्यू कर जाएंगे, ठीक है। मतलब दूसरी लेंथ के लिए अब चेक करेंगे, ठीक है। ये मैंने रो सम निकाला है, ठीक है। रो सम में मैंने चेक करती जा रही हूँ। अगर सम मेरा टारगेट इक्वल नहीं है तो मैं रिटर्न कर ब्रेक कर जाऊँगी, ठीक है, यहीं से। और यहाँ पर एक चेक और लगाएंगे इसके साथ साथ इस मैजिक का भी। अगर इस मैजिक मेरा फॉल्स हो तो रिटर्न कर जाएंगे, सॉरी ब्रेक कर देंगे इस वाले फॉर लूप से, सेम इस वाले भी, ठीक है। और यहाँ पर चेक कर लेंगे अगर इस मैजिक मेरा मैथ बेस्ट, मतलब अगर मैक्सिमम नहीं, सॉरी हाँ मैक्सिमम मिल रहा है तो मैं अपडेट करती जाऊँगी, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे बेस्ट को, ठीक है। रन करके देखते हैं। टेस्ट केस पास हो गए, सबमिट करते हैं। सबमिट हो गया, ठीक है। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आप खुद ही देख सकते हैं, O ऑफ n स्क्वायर जाएगी। क्यों? एक तो मेरा ये फॉर लूप, 2 फॉर लूप हो गए, फिर इसके अंदर इस मैजिक ग्रिड का मैं चला रही हूँ, किसका, इस मैजिक ग्रिड का। ये भी मेरा दो फॉर लूप तक ही जा रहा है, मतलब ये ऑब्वियसली जाएगा O ऑफ n स्क्वायर तक की, ठीक है। तो देखा जाए तो ये O ऑफ n क्यूब सोल्यूशन जा रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आप समझ में आएगा। और ये वाला जो सेम क्वेश्चन है ना, ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है लीड कोड की। प्रॉब्लम नंबर है लीड कोड 840, लीड कोड 840। जो लीड कोड 840 ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा ये वाला क्वेश्चन है मेरा, लार्जेस्ट मैजिक स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में भी मुझे सेम ऐसा ही कुछ फाइंड करना पड़ता है। जो ये वाला कोड होगा ना, ये वाला फंक्शन, सेम ऐसा ही फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा, बस उसमें आपको काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मैजिक ग्रिड को काउंट करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में, 840 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। बट ये वाले क्वेश्चन में आपको काउंट नहीं, आपको एक मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी थी स्क्वायर की, ठीक है। तो आप ये वाला भी ट्राई करिएगा, 840 वाला लीड कोड प्रॉब्लम नंबर, ये भी आपको ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।